Hi friends, how are you? Today we'll cover the card number 6 in the tarot card reading. The card number 6 in tarot card reading is the Lover's card. If you're doing a reading of some client and this card is coming in the reading, that means it's a yes card. It's a 100% positive card. The client will get the success, he will get the fame, he will get the happiness. So whatever is the query of the card, according to the client question, this card can be used and it is definitely a yes card. Now coming towards the analysis of this card is also a very good card in terms of relationships. Suppose if somebody is single and he's looking for a life partner, or someone who's dating somebody, so with this card you can say that yes, it could be possible that very soon this person can get into a good loving relationship, or already if you are in a relationship, there's a high chances of getting married to that person. And either if you are planning to get married, or you planning to be into some relationship, so you have to act very soon, because this card is only and only related to good relationships and positive energies. So now going towards the analysis of this card, you can see that there is a lady and there is a man, and they are completely naked. So naked means that both the people, it could be that if she is a girl in front of you, he is asking about a boy. That means that boy is very frank, he is very honest with her, and he discuss everything with her with deep sincerity. And simultaneously, it could be also that the girl who's asking these questions from me, she's also of that nature, that she is very frank, and she has a very good bonding with her partner, and she discuss everything with him, and they have a very good bonding together. So both of them have a great attraction for each other. But one thing is there, that the male is little bit, you can say he is a bit more, you can say he is little bit practical, and he is a little bit mature and worldly type of nature, and the girl who's looking upwards towards the angel, that means that if she's a girl, it could be possible that she has a little bit of a spiritual mind nature. She is somebody who is not dependent on the fortune, not dependent on the things, but she likes to take blessings of the angels, and she wants to do her own work, and she wants to try things on her own pace, right? But in this card, both the partners have the blessings of the angels, and behind the angel there is a sun, and now sun is a yellow color. It reflects the prosperity and the happiness and the positive things in life. So that means they have full complete support. So if you're doing a reading of your client and this card is coming, then you can suggest the person that yes, it could be possible that if he's unmarried, and it could be possible that very soon they can get married to somebody, and there is 100% or 90% chances that they will do a love marriage only. Or if they are single and they don't have anybody in their life, so there could be chance that somebody will come to their life very soon. So very likely chance is there that they're very soon they're about to get a life partner, or a friend. Okay. Now this card also reflects that if you are working in a job place, if she's a girl and she's working in a job place, so she will get the ample support with her colleague or a boss who is a male member. And if this card reading is coming for a man, then if he's working in office, so it could be possible that he can get the full support from a female boss, or a female colleague, or a female member. So simultaneously, the both is like both the people will get the support from each other. If I talk about in terms of relationships, if I talk about in terms of job, if I talk about in terms of prosperity and happiness, so they have a full support. So any kind of query for any type of question, this is 100% yes card. Now coming further, for there is one more thing. This also reflect the dual people, two people. Why two people are standing with the same situation? So this also reflect
the dual personality of the person. So it could be possible that if you're doing a reading of somebody and this card is coming, so that could be possible that this person is also having dual type of personality. It could be that also it's a positive thing. That person is also having the capabilities of a male and also the capabilities of a female as well. So overall, this person is a all-rounder. Okay, because both the two people are there, so it is also possible that this person is analyzing the life and he is having the capabilities of being a male and also of a female as well. So both the dual qualities are there in that person. But this card is more used in terms of for marriages, for relationships. So if you are want to know about somebody, that whether this person is good or bad for me, whether I should go into this relationship, whether I should go for this marriage proposal, then it reflects that yes, the person you're planning to date or you're planning to get married will give you 100% support. He will be caring nature, he will be positive person, he will get all the support from his side, and the person is also open to understand you as much you're open to understand him. So simultaneously, over here both of them are expressive. If the girl is expressing her feelings and she is talking to the boy, similarly the boy is also expressing his feelings towards the girl, and they both have a very humble and a very harmonious relationship with each other. So basically it's something like they both are like soulmates, and they are complementing each other. And the angel behind them is means that they have a complete blessings of the heavenly angels on them. So they are 100% blessed in their relationships. Now if we analyze that this girl is standing and there is a tree and there are fruits, and over here this boy is standing, also there are leaves. So this also reflects the fertility as well. That means that if they get married to each other, they will have a good love life, they will have good romantic life, they will have good relationship, so the marriage will be very successful. And also because they both are of romantic nature and they both do understand each other very very nicely, and they are very complementing each other very nicely, that's why they will have a very harmonious and a good relationship. So the marriage will be a successful marriage. And if we see the reading of this card, then there is all positive colors in the card. There is green color, there is red color, there is yellow color, and there is also leaves and greenery and fruits. So it all reflects that yes, 100% they have all the kind of resources, they have all the kind of positivity, and they have 100%, they are having a lot of good attraction towards each other. The girl is attracted towards the man and the man is also attracted towards the girl. And on the other hand, if you can see, this girl is she's looking towards the angel. That means this girl is also a very spiritual mind person. She is also very spiritually she is very attached to God, and she might be a person who likes to do prayers, and she could be a very spiritual kind of person, and she's having the blessings of the angels also on her. So overall, for relationships, for marriage, for any type of questions if you have, it is 100% yes card. Suppose somebody is doing a reading of someone and this card is coming to you in terms of for job. Maybe you're planning to take a new job or you have some doubt about it. So for that also it is 100% yes card, that yes, the job will be fruitful, you will have ample support, you will have the prosperity, and you can go ahead for this thing, and you will 100% you will get support. So this also reflects that yes, this is a 100% successful card, and there is no looking back for this card, because we cannot see any black color or any negative side or any negativity in this card. We have the fruits also, we have the greenery also, we have the sunlight also, and the very big part is the angel. Angels are there who are always blessing you.
So this is a big blessing on the partners, that yes, they will have all the blessings and all the support. So reading point of view, this is 100% a very positive card. And if we see that they are inclined to each other, they are of same nature, and they complement each other. So if somebody is doing a reading and this card is coming, so that means for all type of queries this is a yes card. If somebody wants to purchase a house and they say that yes, this house will be good, so if this card is coming, then it's a yes. If you're looking for a job, or you want to go for a marriage proposal, or you have any type of doubts in your mind, so this is 100% a yes card. So in angels are the one, who are always supportive of you, no matter what. If you face any type of difficulties or any type of problems in your life, angels are always there to support you. So whenever we are doing a new work, or you want to do something new, or you want to do something good, what do you require? You need the blessings only of the angels. So this card, the partners are having 100% blessings. This is 100% positive card. This is also a card of love, relationship, marriage proposals, and any type of new relationships. Now this is also a card of connection. Now if you can see that these two people are they are standing in front of each other, that means they are connected to each other, they have good connections, they like to share each other, they like to talk to each other, and they are in their equations is that both of them are good to understand each other well. So they both have a good understanding, right? So this card is a very strong card. It's a very positive card, and it is a very 100% yes card in tarot reading, and this is one of the strongest card, right? So friends, I hope you have liked this explanation. If you liked the explanation, please do like, share and subscribe for my new videos. Thank you for watching. Now I will explain this card in Hindi as well. जैसे कि हम देख रहे हैं, ये कार्ड नंबर 6 है. ये टैरो रीडिंग में 6 नंबर कार्ड है, और इस कार्ड का नाम है द लवर्स. अगर आप किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं और ये कार्ड आपका आता है उस टाइम पे रीडिंग में, तो इसका मतलब ये 100% येस का कार्ड है. हो सकता है आपके सामने जो क्लाइंट बैठी हैं वो या तो किसी रिलेशनशिप में है, या सिंगल है, या शादी करना चाहती हैं, या वो किसी के बारे में जानना चाहती हैं. तो अगर ये कार्ड उनकी रीडिंग में आता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत जल्दी, या तो अगर वो सिंगल है तो उनको कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, या अच्छा कोई उनका लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या ऑलरेडी अगर वो अफेयर में है तो बहुत जल्दी उनकी शादी हो सकती है. और अगर वो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहती हैं, या ऑलरेडी उनका पार्टनर है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से उनकी मतलब जो थॉट प्रोसेस है एकदम सेम है, क्योंकि एक दोनों दूसरे के साथ कोई भी चीज़ हाइड नहीं करते हैं. उनके रिलेशन में कोई भी हिडन चीज़ नहीं है. जो भी चीज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा खुल के अपने मन की बात करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं. अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लड़का खड़ा है, इसके पीछे एक ट्री है, उसमें लीव्स हैं जो फर्टिलिटी को, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है. और जो लड़की है उसके पीछे फ्रूट्स हैं जो फर्टिलिटी को दिखाता है. अगर इन दोनों की शादी होती है, मैरिज हो जाती है, या इनका रिलेशनशिप आगे चलता है, तो आगे चल के इनकी मैरिज या रिलेशनशिप बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है. यानी कि इनको 100% अपने रिलेशनशिप में इनको प्यार मिलेगा, इनको हार्मनी मिलेगा, ये एक दूसरे की केयर करेंगे, ये एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं आगे जाके. क्योंकि दोनों ही जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों न्यूड है, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल मन खोल के, दिल खोल के, साफ मन से बात करते हैं. दोनों एक दूसरे से कोई भी चीज़ हाइड नहीं करते हैं. तो ऐसे लवर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपको कोई लवर है
और आपके साथ वो एकदम अपनी बात, मन की बात एक्सप्रेस कर सकता है या खुल के बात कर सकता है, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कम खड़ी होती हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को अपनी बात बता पाते हो और अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पाते हो। अगर हम आगे थोड़ा सा इसका एनालाइज करेंगे तो लड़का जो है वो लड़की की तरफ देख रहा है, दैट मीन्स द बॉय, अगर ये कोई लड़की आती है आपके पास और उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो इसका मतलब ये है कि बॉयफ्रेंड उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। उसकी अगर आप उसकी मतलब आउटर ब्यूटी कह सकते हैं, उसका लुक्स कह सकते हैं, या उसकी पर्सनैलिटी कह सकते हैं, तो दिस बॉय इज़ 100% ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द गर्ल। ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि अगर इसमें हो सकता है कि अगर वो लड़की है, तो लड़की जो है वो एंजल की तरफ देख रही है, इसका मतलब जो लड़की है वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल साइड पे है, थोड़ी सी मतलब वो पाठ पूजा करने वाली, या थोड़ी सी हो सकता है जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड पे है, और वो थोड़ा सा मतलब वर्ल्डी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो भगवान पे ज़्यादा विश्वास करती है, एंड शी इज़ अ वेरी गुड एंड अ पायस लेडी। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसमें रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने वाला है, उनको एंजल की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं, गॉड इज़ 100% उनके साथ है, भगवान उनका साथ दे रहा है। और अगर हम इसमें अगर हम कलर्स की बात करें, जैसे ये सन है, ये येलो कलर है, ये एंजल्स हैं, और एंजल्स इनको सुन रहे हैं, इनको ब्लेस कर रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब जिस तरीके से खड़े हैं, इसका मतलब ये 100% एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो अगर हम ये लव की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात में अगर ये कार्ड आता है या कोई किसी के बारे में जानना चाहता है, तो 100% ये यस कार्ड है। ये मैरिज का कार्ड है, लव का कार्ड है, रिलेशनशिप्स का कार्ड है। अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है जो किसी के बारे में जानना चाहता है या कोई रिलेशनशिप में जानना चाहता है, और अगर ये कार्ड आता तो इसका मतलब ये येस कार्ड है, ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये मैरिज कर रहे हैं उस बंदे से, तो वो मैरिज अच्छी चलेगी और 100% इनको सक्सेस मिलेगा। तो ये डेफिनेटली और जो दूसरी चीज़ ये भी दिखाता है कि दोनों ही पार्टनर में, ये नहीं कहूँगी कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, इसमें ये दिखाता है कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को लाइक करते हैं, दोनों की अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ, दोनों की इक्वेशन अच्छी है, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, और आगे जाके दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, केयर करेंगे। बट ऑल्सो जैसे कि आप इसमें थोड़ा सा ये क्लाउड्स देख रहे हो नीचे की तरफ ना, जो क्लाउड्स आ रहे हैं ये थोड़ा सा आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर करके चलना पड़ेगा, यानी कि इसमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि अगर इन दोनों को अपनी शादी चलानी है या अपना रिलेशनशिप आगे चलाना है, तो थोड़ा सा उनको कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के साथ चलना पड़ेगा, तभी वो आगे अपनी मैरिज या अपना रिलेशनशिप को आगे फॉरवर्ड कर सके। दो उनके साथ भगवान की, एंजल्स की, गॉड की सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन ये जो क्लाउड्स इसमें दिख रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि इनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के साथ चलना पड़ता है। हो सकता है कि इनके आगे जाके इनके रिलेशनशिप में, इनके मैरिज में बहुत सारे चैलेंजेस ये फेस करें, और इनको उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये नहीं होगा कि सिर्फ लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और लड़का नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे और इनका रिलेशनशिप आगे चलेगा। बट यस, ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इनकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। 100% ये यस कार्ड है, सक्सेसफुल कार्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है टैरो का। जहाँ पे लवर्स का कार्ड आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि आपको कोई डाउट, कोई तरीके की शक शुबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो काम करने जा रहे हैं आप 100% आप आंख बंद करके कर लीजिए, आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पुराने कार्ड में आपको बताते हैं कि हर्पेंट कार्ड में आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है, और प्रीस्टेस कार्ड में आपको किसी मदर, एम्प्रेस कार्ड में आपको किसी मदर की बात करनी है, या एम्प्रर में आपको किसी फादर फिगर से बात करनी है। इसमें आपको कोई ऐसा कोई डाउट नहीं है। इसमें ये मतलब है कि 100% ये कार्ड आपको सक्सेस देगा, भगवान की पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपको हर तरीके की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप एक काम करिए, आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप ये मैरिज के लिए ये कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे की या बंदी की लव मैरिज ही होगी, या तो वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में चल रही हैं, या हो सकता है कि अगर वो सिंगल है
तो बहुत जल्दी उनकी लाइफ में कोई अच्छा नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, बट वो उनका लव मैरिज से ही कनेक्शन होगा। और जो भी उनका लवर होगा वो उनको बहुत केयर करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा, और दोनों एक दूसरे के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप इंजॉय करेंगे। अगर अभी हम किसी जॉब के लिए अगर किसी का ये कार्ड आता है, और आप अगर जॉब करना चाहते हैं, आप एक लड़की हो, गर्ल हो, और आपका बॉस कोई मेल है, तो उसका मतलब ये है कि वो भी आपके साथ बहुत सपोर्टिव रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बॉस से आपका चक्कर चल जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक गर्ल हो और आपका जो रिपोर्टिंग बॉस एक अगर मैनेजर एक मेल है, तो आपको उससे पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपका जॉब अच्छा चलेगा, हारमोनियस चलेगा, और आपको सपोर्ट रहेगा काम में, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। सिमिल्टेनियसली अगर आप एक मेल हो और आपकी कोई बॉस है या आपके कोई कलीग्स हैं जो फीमेल्स हैं, फीमेल स्टाफ है आपके आपके ऑफिस में, तो हो सकता है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपका काम जो है बहुत हारमोनियस चलेगा। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आप फेस करोगे, ठीक है। और जो यहाँ पे येलो कलर दिखाता है, दैट मीन्स कि यस आपको पूरी तरीके की प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन जो ये क्लाउड्स यहाँ पे दिखाएंगे तो जॉब प्रोस्पेक्टिव से ये बताते हैं कि ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपको ज़्यादा काम करना पड़े, या आपको वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, या आपको थोड़ा बर्डन रहे, या आपको ओवर टाइम करना पड़ जाए, या हो सकता है कि आपको कभी कभी वीकेंड्स पे काम करना पड़ जाए। तो इस तरीके की कोई ऐसी भी जो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी होता है, थोड़ा सा आपको ओवरलोडेड आप फील करोगे कि ओवर बर्डन हो रहे हो। लेकिन ओवरऑल ये कार्ड पॉजिटिव है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्ड बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नया जॉब लेने वाले हो या आप ऑलरेडी जॉब में हो, तो आपको ये अगर कार्ड आता है रीडिंग में, तो इसका मतलब यस, अगर आपके पास जॉब है तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आपको कोई नया जॉब लेना है, चेंज करना है, और अगर ये कार्ड आता है तो मतलब यस आप चेंज कर सकते हो, आपको हर तरीके का सपोर्ट रहेगा। हाँ, दो चैलेंजेस और कॉम्प्रोमाइज़ तो हर एक जगह आपको करने ही पड़ते हैं। वो थोड़ा बहुत आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए यू हैव टू वर्क फर्दर, हार्ड वर्क देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर इसका एनालिसिस देखें तो नॉट बैड। इसमें आपको हर तरीके का सपोर्ट है, प्रॉस्पेरिटी भी है, आपको हेल्प भी है, आपको एक तरीके का एक ब्लेसिंग्स भी मिल रही है एंजल्स की। तो 100% ये आपको हेल्प ही कर रहा है। इसमें आपको कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती है। लेकिन इसमें जैसे थोड़ा सा हम ज़्यादा इसको रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा देखते हैं, इसको हम फर्टिलिटी की तरफ ज़्यादा देखते हैं। अगर ये मैरिज के लिए प्रपोजल के लिए आ रहा है, रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, तो ये कार्ड थोड़ा सा उस साइड पे ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन ओवरऑल बाकी चीज़ों के लिए भी ये अच्छा कार्ड है। अगर कोई नया घर लेना चाहते हैं, आप कोई नया जॉब करना चाहते हो, या आप कोई नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता करना है कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, और आपका ये कार्ड आता है, तो 100% वो आपको पॉजिटिव ही देखा जाता है। क्योंकि इसके जो कलर्स हैं ये सारे पॉजिटिव ही हैं। आप अगर येलो देखिए, इसमें रेड देखिए, ग्रीन देखिए। अब ग्रीन कलर भी एक प्रॉस्पेरिटी का कलर है, पॉजिटिविटी का कलर है, और इसमें जो फ्रूट्स भी हैं, उसमें ग्रीनरी भी हैं। और अगर आपको ये इसकी न्यूडिटी आप देखते हैं, तो इसका मतलब कि ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि आपके किसी भी काम में कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, आपके रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। अगर आपके पार्टनर हैं तो वो आपके साथ बिल्कुल सिंसेयर हैं, हर चीज़ आपके साथ बोलते हैं, हारमोनियस है, ट्रस्ट है आपके रिलेशनशिप में। आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा, वो केयरिंग नेचर के होंगे, ट्रस्ट करेंगे, रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। अगर आपकी मैरिज होती है तो हो सकता है बाद में भी आपकी मैरिज के लिए भी अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये फर्टिलिटी भी दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी भी दिखाता है, हैप्पीनेस भी दिखाता है, और अट्रैक्शन भी दिखाता है कि यानी कि आपकी जो पार्टनर है वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, और आपकी एक अट्रैक्शन है उनकी तरफ। तो अगर आप लड़की हो तो हो सकता है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है, या आपके जो बॉयफ्रेंड है, या अगर आपको कोई किसी को डेट करनी है, या आप सिंगल हो, तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, जो जिसका फोकस आपके ऊपर रहेगा। तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत हारमोनियस चलेगा। अगर आपके पास अभी कोई ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप सिंगल हो, आपके दूर दूर तक कोई
कोई फ्रेंडशिप नहीं है या नहीं है, तो अगर ये कार्ड आता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसा आदमी आने वाला है जो आपकी लाइफ को बदल देगा या आपको केयर करेगा, जिसके साथ आप ट्रस्ट वर्दी होगा, जो अपनी हर बात मन खोल के आपसे बताएंगे और आप भी उनको ट्रस्ट करोगे, उनके साथ आपको कंफर्ट हो जाएगा। इन कंफर्ट जोन में आप आ जाओगे, उस कंफर्ट जोन में आप भी अपनी बात उनके साथ खुल के कर सकते हो। So he can be a good lover also, he can be a good husband also. So ये भी आपका एक बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो हर चीज़ के लिए यस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। रिलेशनशिप्स के लिए बोल दीजिए, अगर मान लीजिए ये कार्ड आपके पेरेंट्स के लिए आता है या आपकी सिस्टर ब्रदर्स के लिए आता है, तो भी इसका मतलब है कि आपके सिस्टर ब्रदर्स के बीच में हार्मोनी है, और अगर नहीं भी हार्मोनी है तो बहुत जल्दी हार्मनी होने वाली है। आपका रिलेशनशिप आपके ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो ये एंजल आपको पीछे दिख रही है, ये एंजल्स की आप पे ब्लेसिंग्स है, यानी कि भगवान की आप पे कृपा है। तो आपके हर चीज़, आपके रिलेशनशिप सब अच्छे हो जाएंगे। मान लीजिए अगर अभी आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं तो बहुत जल्दी, इसका मतलब ये भी है कि अगर आप थोड़ा सा, जैसे कि लड़की ऊपर एंजल की तरफ देख रही है, इसका मतलब ये भी है कि थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा पाठ पूजा कीजिए, थोड़ा सा आप अगर अपनी बात सही से उनसे बात करेंगे, अगर आपके पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज़ हैं या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ इश्यूज़ हैं, अगर आप उनके साथ थोड़ा सा खुल के बात करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, तो आपको एक ओवरऑल एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ जीने को टाइम मिलेगा, और आगे जाकर भी ये रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म रहेगा और बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आपको दिख रही है कि किसी तरीके का कोई मोटिव है या कोई ग्रीड है। सिर्फ ये जो क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, ये क्लाउड्स दिखाते हैं कि यस, थोड़ा सा इसमें आपको कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का होना चाहिए। मान लीजिए आप, अगर आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं और आप उनके साथ ज़्यादा, आपकी नहीं उनके साथ अच्छा बनता है, तो थोड़ा सा, अगर आप छोटे हैं घर में या बड़े हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का बनना पड़ेगा, थोड़ा सा उनके साथ आपको प्यार दिखाना पड़ेगा, थोड़ी केयर, थोड़ी इफेक्शन दिखानी पड़ेगी, तो आपका रिलेशनशिप भी उनके साथ अच्छा हो जाएगा ओवरऑल। एंड सिमिलरली अगर आपके पार्टनर हैं और आपके पार्टनर के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, मान लीजिए आपका रिलेशनशिप अभी अच्छा नहीं चल रहा है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ऐसा गाइडेंस के लिए हम कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए। आपके मन में जो बात है, अगर आप थोड़ा सा खुल के अपने पार्टनर को बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे, थोड़ा सा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप लॉन्ग रन में अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, उनके साथ उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो वो भी आपको अपनी सारी बात बताएंगे, और आपकी जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या मनमुटाव है या कोई भी तरीके की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो बहुत जल्दी वो आपके रिलेशनशिप से चली जाएंगी। एंड ओवरऑल आपको अपनी एंजल्स की, अपनी गॉड की, भगवान की आपको ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, एफर्ट आपकी साइड से भी आएगा। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है हर एक चीज़ के लिए। अगर ये कार्ड आता है लवर्स का, तो हम ये क्लाइंट को यही कहते हैं कि येस, आपको बहुत जल्दी आपको प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस मिलने। लेकिन अगर हमने 2-3 कार्ड्स की रीडिंग करी है और इस कार्ड के साथ और कार्ड आते हैं, तो भी आप इस कार्ड को ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोलेंगे और इसी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है टैरो में। अगर ये कार्ड आ जाता है तो इसके बाद आपको कोई डाउट या कोई और चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देयर इज़ नो लुकिंग बैक, यानी कि ये 100% पॉजिटिव कार्ड है, येस का कार्ड है। ये हर तरीके के रिलेशनशिप्स के लिए, हार्मनी के लिए, हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए ये अच्छा कार्ड है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपनी और कार्ड्स और रीडिंग्स शेयर कर सकूं। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी, और बहुत जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।